Assalamu alaikum everyone. We'll wait for another 2 minutes for everyone to join and then we'll start inshallah. Rimsha, can you please share the slides? Okay, Nimra. I think अभी notification नहीं किया है सबको. We have very less time, obviously, so we should start. So everyone, thank you so much for joining the webinar, and I warmly welcome you here. I'm Nimra Bhatt, a psychologist, a certified NLP practitioner, a certified timeline therapist, and a life coach. You can find me on Instagram and Facebook. I go by Hope Soul Mind. Next slide, please, Rimsha. There's supposed to be more people here. काफी लोगों ने register किया था. I'm not sure उनको email नहीं किया या what happened. Haven't they checked their WhatsApp? Uh, it's fine. We are here to learn and we will learn. अच्छा जो आज का सेशन है ना, it is going to be all about depression and trust me, it's very close to my heart. I want more people to understand what depression really is and how it's different from sadness, क्योंकि अक्सर हम sadness और depression को बहुत ज़्यादा mix कर देते हैं. जब हम सैड होते हैं हम डिप्रेशन का वर्ड बहुत कैजुअली यूज कर देते हैं सैडनेस के लिए. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज एंड हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम सैडनेस और व्हाट कुड बी सम coping strategies that we can use for on ourselves and also use to support someone else who's going through depression. इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आई रियली वांट टू शेयर समथिंग with all of you that might actually resonate with all of us. We have a tendency to say that I'm fine. मतलब जब हमसे कोई पूछता है, फॉर एग्जाम्पल कॉल पर ही देख लें, जब कोई हमें कॉल करता है क्या हाल है आपका, एंड वी से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हम वी गो लाइक दिस. चाहे हमारे ऊपर दुनिया का कोई भी पहाड़ टूटा हो, बट वी आर जस्ट गोइंग टू से दैट आई एम फाइन इवन व्हेन वी नॉट. सो वी डू दिस अ लॉट. हम अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा ब्रश असाइड कर देते हैं ये समझ के कि बस ये खुद ही गायब हो जाएंगी. ये जो भी नेगेटिविटी या जो भी हमारे अंदर सारी फीलिंग्स चल रही हैं जो हमारे हमें डिस्ट्रॉय कर रही हैं, ये बस कोई मैजिक होगा एंड विद द स्नैप ऑफ द फिंगर्स इट विल बी गॉन. बट दैट्स नॉट what happens in reality. So आज जो है we are going to hopefully break this habit of saying I'm fine and we'll talk about depression openly.
One more thing that I want to say before starting is that remember that if you or someone else that you know is struggling from depression, know that you're not alone. There's always hope and there's always help. So, yeah, let's start by knowing what is depression. Yes, Rimsha, next slide, please. What is depression? अभी मैंने आपको बोला कि डिप्रेशन जो है अक्सर हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं सैडनेस के लिए। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा सैड है, हमें बॉस ने ऊंचे से डांट दिया, टीचर ने डांट दिया, या हम लोग किसी टेस्ट में फेल हो गए फॉर एग्जांपल। वी जस्ट से दैट ओ माय गॉड आई एम सो डिप्रेस्ड, माय डे वाज नॉट गुड, आई एम सो डिप्रेस्ड, और आई लॉस्ट followers, I'm so depressed. But no, that's not what depression is. Depression is not just about feeling sad. It is much more than that. ये एक serious mental health disorder है जो कि हमारे emotions को, हमारी thoughts को, even हमारी daily life को affect कर रहा है. It does not let you think straight. It does not let you feel straight. It does not let you do any activity that you were usually doing before. सो डिप्रेशन इज मच मोर सीरियस देन सैडनेस। सैडनेस तो क्या है, अभी हम उदास हैं, थोड़े टाइम बाद हम ठीक हो जाएंगे। वो रीज़न जैसे जैसे हम भूल जाएंगे हमारी सैडनेस चली जाएगी, उदासी खत्म हो जाएगी, कुछ और मिल जाएगा हमें। बट जो डिप्रेशन है, इट इज़ परसिस्टेंट। इट परसिस्ट फॉर वीक्स, फॉर मंथ्स, in fact sometimes it stays for years, and it affects every aspect of our life. We have to know that. इनफैक्ट एक दफ़ा मैंने किसी को डिप्रेशन को डिफाइन करते सुना था, एंड दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। आई स्टिल रिमेंबर इट, दैट द कलर हैज़ ड्रेन्ड आउट ऑफ माई लाइफ। मैंने उनसे पूछा ऐसी कैजुअल टॉक में, वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन अबाउट समथिंग, एंड आई सेड हाउ आर यू फीलिंग और हाउ इज लाइफ nowadays, and they replied by saying that the color has drained out of life. So can you imagine how overwhelming that must feel? और मतलब ये कह देना कि जिंदगी के रंग ही उड़ गए हैं। ठीक है, तो कितना मुश्किल होगा ये लाइन आने के लिए जहन में, ये अल्फाज जो निकले हैं, किस चीज से गो थ्रू कर रहे होंगे वो। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड एंड टू एड्रेस इट। इनफैक्ट एक फन फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, और वो ये है कि डिप्रेशन जो है, it is the leading cause of disability worldwide. I'm sure many of you did not know about this, but it is. In fact, researchers ने show किया है कि by 2030 ये जो है diseases का globally, it would be the leading cause of the diseases. So in you know यहाँ पे जब इस तरह की चीज़ें आती है ना, then I get really personal about this, and I see that how it is important, how much important it is to recognize and tackle with it on early basis. So yeah, this is, let's move to the next slide, Ramsha. सो आई होप अभी तक आपको ये तो समझ आ गया कि डिप्रेशन कितना सीरियस है एंड वेयर इट्स लीडिंग टू अस। क्योंकि इस हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ तो डिप्रेशन है ना, लेकिन मतलब वो हमारी फिजिकल हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारी हेल्थ को ट्रिमेंडसली इफेक्ट कर रहा है, एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। वी आर नॉट consulting anyone, we're not catering it because we think that it is just going to go away, but it is not going to go away on its own. We have to do something, we have to take a step ना। फीलिंग डाउन, वही ना जो मैंने बोला कि देखें, हम सब अपनी ज़िंदगी में सैडनेस एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस। सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई चैलेंज ज़रूर होता है। ठीक है, इट माइट बी अ फाइनेंशियल चैलेंज, इट माइट बी लूजिंग अ लव्ड वन, और मे बी फेलिंग एट समथिंग important. It could be your test or interview, like, or आजकल breakups. So experiencing such challenges and then experiencing such sadness, that's normal, that's natural. ये feelings painful हैं, but they usually ease up with time and support, they go away. but जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, it is completely different. मतलब अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी। चलिए पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि परसिस्टेंट का वर्ड मैं बहुत ज़्यादा जो है ना डिप्रेशन के लिए यूज़ करूँगी और करती हूँ, क्योंकि जो परसिस्टेंट है उसका मतलब ये है कि वो लगातार आपकी ज़िंदगी में रहता है। तो डिप्रेशन, इट इज़ परसिस्टेंट एंड इट डज नॉट ऑलवेज हैव अ क्लियर कॉज टू इट। क्योंकि सैडनेस की तो कोई ना कोई वजह है ना। अगर आप डाउन फील कर रहे हैं, उदास फील कर रहे हैं, तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होगी, कोई
कोई इवेंट होगा, लेकिन जो डिप्रेशन है ना वो ग्रेजुअली डेवलप होता है और इसकी कोई क्लियर कॉज, कोई क्लियर रीजन नहीं होता. बट इट डज इम्पैक्ट हाउ यू थिंक, हाउ यू फील एंड हाउ यू फंक्शन इन योर एवरीडे लाइफ. Now, here's one thing I want to add, that sadness, जो है ना, not all sadness is depression, but all depression does include sadness. जब डिप्रेस होते हैं तो सैडनेस अंदर ज़रूर आती है, लेकिन हर सैडनेस को हम डिप्रेशन का नाम नहीं दे सकते. जो सैडनेस है, इट माइट फील लाइक अ हेवी स्टॉर्म दैट इज पासिंग, but depression, it feels like you're living under a constant gray cloud. Even जब the sun is shining, that's what depression feels like. और जो depression है, its feeling lasts more than 2 weeks and disrupts your daily life. अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं इसके सिम्टम्स को या इन फीलिंग्स को आपके अंदर आते हुए या आपके लव्ड वंस के अंदर आते हुए, then you have to know that it is time to take them seriously. You cannot ignore them anymore, and you cannot say that it is just going to pass away just like a heavy storm, because it is not going to go on its own. Remember that. So let's talk about some of its symptoms कि हम जो हैं कैसे डिप्रेशन को रिकग्नाइज कर सकते हैं, इसकी एक्चुअली सिम्टम्स क्या हैं, कि अगर सिर्फ सैडनेस या क्राइंग जो है वो डिप्रेशन नहीं है तो फिर एक्चुअली सैडनेस है क्या. प्लीज़ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो एक एक्रोनिम जो यूज़ करती हूँ मैं डिप्रेशन के सिम्टम्स को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स, शी टोल्ड मी अबाउट दिस एक्रोनिम एंड इट इज़ सेगी कैप्स. इसके नाम के अंदर ही इसके सारे सिम्टम्स हैं. सो इसको ब्रेक डाउन करते हैं वन बाय वन एंड लेट्स गेट deep into it. Just give me a second. I think people are asking for the link. Let me cater with that. Meanwhile, if any of you have any question about sadness, depression, grief, you can ask me and I'll answer that. Yes. Move back to the slide. I want that last slide again, Ramsha. And any one of you, if have any question, you can ask me. क्योंकि आई नो कि डिप्रेशन को समझना और उसका डिफरेंस कि सैडनेस क्या है उसको समझना बहुत काफ़ी मुश्किल हो जाता है. अच्छा, एक वर्ड और है जो मैं आपसे मेरे जहन में भी आया, जो जिसको जो है ना अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, वो है ग्रीफ. जो ग्रीफ है ना वो भी डिफरेंट है सैडनेस से. सैडनेस तो होगी ना कि हम लोग कोई एक्टिविटी ऐसी हो गई है, कोई इवेंट ऐसा हो गया डेली लाइफ का, प्रोफेशनल या सोशल एस्पेक्ट से, जिसकी वजह से हम उदास हो जाते हैं. लेकिन जो ग्रीफ है ना, इट इज़ ऑलवेज अबाउट losing your loved one. It could be your parent, losing a parent, or maybe a sibling or a very close friend or cousin, like that. So yeah, that's what grief is. So एक ये डिफरेंस समझना भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए. अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो we'll just move forward. No questions? Okay, let's move to the next slide. And now we are going to discuss about the symptoms of depression. Segi gaps. अच्छा, द कैपिटल ऑल यू. अच्छा, एक चीज़ और आपने ये नोटिस की होगी, सब लेटर्स कैपिटल हैं एंड देयर इज अ स्मॉल एस एट द एंड, एंड we'll discuss about that also. Let's start with the capital S, the first one, the Segi caps S, that is for sleep issues. जब हम sleep issues की बात करते हैं, that's very common, हम सबको पता है, insomnia, hypersomnia, right? बट ये अगर clinical terms नहीं है, आप लोग इससे इसका आइडिया आपको तो मैं बता दूं. इंसोम्निया इज व्हेन यू आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप और यू कैन नॉट इवन गेट अ विंक ऑफ स्लीप एट नाइट, एंड हाइपरसोम्निया इज व्हेन यू आर स्लीपिंग टू मच. स्लीप इश्यूज में आपका हाइपरसोम्निया और इंसोम्निया दोनों आते हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी दैट अदर देन दैट इट कुड ऑल्सो बी अ स्लीपिंग पैटर्न. दैट मीन्स कि हो सकता है कि आप रात को सो रहे हैं लेकिन एकदम से आप उठ जाते हैं और फिर उसके बाद फिर सो जाते हैं. हो सकता है कि आप जो है रात को नहीं सो रहे हैं और आप सुबह को सो रहे हैं. सो स्लीपिंग पैटर्न भी जो है ना चेंज हो जाते हैं. देन ई. ई स्टैंड्स फॉर द लो एनर्जी. जितनी मर्जी आप ले लें नींद, फिर भी आप टायर्ड हैं.
You're consistently feeling tired, you are consistently feeling the fatigueness, there's lethargy, even after resting. So वो जा ही नहीं रही आपकी बॉडी से ना, वो एनर्जी जो आपको चाहिए वो आप अगर सोकर देख लें, आप खाकर देख लें, you're not gaining that energy back. So that is another symptom for depression. Now, G here, my friends, G is very important, which stands for guilt. ये जो guilt है ना, never ever you're going to come across in life a person who is in depression and does not have a guilt. Wherever there is depression, there is guilt. The constant feeling of worthlessness or blaming yourself unnecessarily for the events that are happening in your life or maybe happening in the life of your loved ones or the closed ones. So guilt जो है ना वो हमेशा वहाँ होगा. कई मर्तबा तो ये गिल्ट ही है जो कॉज बन जाता है, सिम्टम के साथ साथ कॉज भी हो जाता है डिप्रेशन का. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये देखना कि जिसकी जो गिल्ट में है ना वो डिप्रेशन आएगा वहाँ पर. ठीक है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. Next in SEGI CAPS is I, and I stands for loss of interest, the displayer in things that you once used to enjoy. कुछ एक्टिविटीज होंगी जो शायद आपको पहले करते हुए बहुत मजा आता होगा. कई दफा होता है ना कि ओ तुम्हें क्या हो गया, तुम तो पहले बहुत आउट गोइंग थी, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता था घूमना, अब क्या हो गया है, अब क्यों नहीं जा रही. या फिर ओ लेट्स अगर किसी को फॉर एग्जांपल बैडमिंटन खेलना पसंद है, ओ अब क्यों नहीं बैडमिंटन खेल रही हो, this used to be your favorite sport or whatever like this. Suddenly or gradually start losing interest in those things that you were once enjoying or you were loving it. That does not just give you pleasure anymore. Next comes C, which is when you have difficulty in concentrating. You start to struggle with your focus, you start to struggle with making decisions. In fact, एक word जो हम बहुत ज़्यादा social media पर use करते हैं, specifically on Instagram, that is brain fog, जो इसको completely सही से जो है कर सकता है resonate. अक्सर हम बात करते करते भूल जाते हैं, ठीक है, वो भी lack of concentration में आएगा. देन व्हाट हैपेंस इज हमारी मेमोरी बहुत वीक होने लग जाती है. I'm sorry, I had some issues with the mic. So there's some issues happening, technical issues. I'm not sure why. Okay. So where was I? I was talking about the concentration difficulties. So yes, आप फोकस नहीं कर पाते हैं अपनी चीज़ों पर. फिजिटिंग बहुत ज़्यादा होती है. आप एक काम कर रहे हैं साथ ही आप दूसरा शुरू कर देंगे और पहला आप भूल जाएंगे. आप बात कर रहे हैं, बात करते करते आप शायद बात भूल जाएं. सो दिस हैपन्स अ लॉट. नाउ फॉर द ए, इट स्टैंड्स फॉर एपेटाइट चेंजेस. एपेटाइट चेंजेस में भी जो है ना दरअसल ये थोड़ा सा वो स्लीप इश्यूज वाली चीज़ आ जाती है जिसमें हम कम और ज़्यादा स्लीप की बात करते हैं. ऐसी एपेटाइट इट goes high or low. But there's another thing that I want to add for appetite. It is not necessary कि सिर्फ appetite low हो या high हो. Sometimes what happens is कि patterns, eating patterns change हो जाते हैं या eating content change हो जाता है. ये हो सकता है कि the person who is suffering from depression, who is facing that challenge, that person might only be able to eat at one particular time कि उसने भाई 5:30 खाना खाना है, उसके अलावा वो खाना नहीं खा सकता. ठीक है. या कंटेंट में चेंजेस ऐसे हो सकती है कि उसको अगर शवारमा खाना पसंद है तो वो बस बस वही शवारमा ही खाएगा. अगर पिज्ज़ा पसंद है तो सिर्फ पिज्ज़ा और कुछ नहीं खाना. अगर जंक फूड है तो वही शुरू हो जाना है. सो ये एपेटाइट चेंजेस भी आ सकते हैं कि व्हेन यू आर नॉट ईटिंग हेल्दीली और रेगुलरली. दैट्स व्हाट एपेटाइट चेंजेस मीन. पी, साइकोमोटर चेंजेस. अब साइकोमोटर चेंजेस जो है ना ये दो तरह की होती हैं. इसमें आपने देखा होगा मैंने लिखा हुआ है कि साइकोमोटर एजिटेशन एंड साइकोमोटर रिटार्डेशन. अब ये जो साइकोमोटर एजिटेशन, guys, if you give me just 1 minute, I'll be back.
I'm so sorry about that. Okay, psychomotor agitation and psychomotor retardation. अब ये जो agitation है ना, some of you, if you are from a psychology background, you might know that psychomotor agitation actually relates to the movement of our body. What happens is that we become really restless and the movements become really slow. आपने अक्सर बल्कि देखा होगा, if you have come across any clients with the depression or have any seen any other person with depression, what happened? Why is there less time? Okay. सो आपने देखा होगा कि बहुत स्लाउची वॉक हो जाती है, शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं चलते हुए, ठीक है। और बहुत ही ऐसे डाउन, बैठते भी ऐसे ही हैं, ऐसे शोल्डर्स आ जाते हैं। इफ़ यू नोटिस द फिजिकल चेंजेस इन द पर्सन, यू विल सी कि जो डिप्रेशन वाले लोग होते हैं उनमें मूवमेंट्स बहुत स्लो हो जाती हैं। दे टॉक वेरी स्लोली ऑल्सो। सो रिटार्डेशन में रेस्टलेसनेस, फिजिटिंग होने लग जाती है, वो एक जगह पे नहीं बैठ सकते, वो वहाँ से बस उनको घबराहट होगी, वो वहाँ से उठकर जाना जाना चाहेंगे, एंड दिस हैपन्स अ लॉट विद देम। For the retardation thing, what happens is that their responses slows down. वो जब बात करेंगे तो वो बहुत आराम से बात करेंगे, बहुत धीमे लहजे में, और मतलब sometimes it happens that you might not be able to hear them. So ये चीज़ आ जाती है। Now a very important point जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, and this is the small s that stands for suicidal ideation and the suicidal attempts, the suicidal thoughts. अच्छा, ये जो है ना, ये वाली कंडीशन, ये वाला सिम्टम जो है, इट ओनली कम्स अप व्हेन द डिप्रेशन हैज रीच्ड टू अ severe stage. Okay. What happens is that the person starts thinking about the death or the self harm. अब ये जितना सुनने में मुश्किल है और बोलने में मुश्किल है, इट इज़ एक्चुअली हेवियर देन दैट। होता क्या है कि देखें, द पर्सन, अच्छा इसका अर्ली साइन जो है ना वो देखना बड़ा ज़रूरी है कि स्टेज पर पहुंचने से पहले कि वो सुसाइडल थॉट्स और सेल्फ हार्म पर आ जाए, अर्ली साइंस रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब उसके अर्ली साइंस क्या हैं कि the person will start talking about that how worthless their life is, how meaningless it is, they have no purpose in their life। ये hints आपको नज़र आएंगे कि बात होगी कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, मैं जीकर क्या करना है, मतलब क्या है ज़िंदगी में रखा हुआ, कुछ भी नहीं रखा हुआ है। सो these type of things lead to this suicidal ideation and to the attempts and might lead to the self harm। सो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें कि कौन जो है इस तरह की बातें कर रहा है। बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड बी अवेयर ऑफ द पीपल अराउंड यू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो है ना, ये सिम्टम्स, दे डू साउंड सिंपल, but let me tell you, they make every single task of your daily life really difficult. Even getting out of bed or maybe brushing your teeth, it just feels so overwhelming that you cannot perform it. You cannot do it. So, if this resonates with you or someone you know, it is important that you seek help. You ask that person to seek help. It is really important. Uh, so, that's it for the symptoms. Let's move forward. We do have less time also. So, I'm just trying to, I hope you guys are understanding. If you have any questions, if you want to leave any comment, you can just do that in the chat box because I'll be reading that along. I think we might not have a proper time for this Q&A. So I'll take your questions. You can send it to me on the WhatsApp group or individually, or just DM me on Instagram. I will answer each one of you. Don't worry. Okay, let's talk about some unseen symptoms of depression, जो कि क्योंकि कई मर्तबा हम देखते हैं, हमें लगता है कि रियली दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, लगता तो नहीं है, ऐसे देख के हमने कई मर्तबा ऐसे बोला। इनफैक्ट न्यूज़ में जो है कई मर्तबा हमें सुसाइड न्यूज़ मिलती हैं, कोई सुसाइडल, एंड वी थिंक अबाउट इट कि really this person was suffering from depression। रात को तो we saw a post, he was enjoying that party or something like that,
But there are some symptoms that go unseen because people who suffer from depression, they are master at masking their pain or their sadness with humor. They don't want anyone to see it, don't want anyone to recognize it. They either start they either start taking so many burden on themselves. They start keeping themselves busy to avoid their feelings so that no one else can see it. अब पता होता क्या एक्चुअली, जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं ना, उनको ऐसे लगता है कि अगर हम किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, अपनी पेन शेयर करेंगे, तो शायद वी आर बीइंग अ बर्डन ऑन देम, बट दैट्स नॉट ट्रू, यू नॉट बीइंग बर्डन ऑन एनीवन। बट जो डिप्रेशन है वो हमारे ब्रेन के साथ यही करता है, इट मेक्स अस फील कि हमारे अराउंड हम सबके लिए बर्डन है, देयर इज नो बडी फॉर अस, वी आर अलोन, इट मेक्स अस फील अलोन। एक फिल्टर ना हमारी आंखों के और ब्रेन के आगे ये डिप्रेशन लगा देते हैं कि इस दुनिया में हम अकेले हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, एंड ऑल द पेन दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम इट इज बिकॉज वी डिजर्व इट, सिंपली एज लाइक दैट। सो एक ये चीज़ है कि वो मास्किंग में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। एक और अनसीन सिम्टम है constant headaches and stomach aches or any other somatic complaints. That could be the pain in your shoulders, the neck. What happens is कि constant pains हो रही हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, स्कैन्स हो रहे हैं, टेस्ट्स हो रहे हैं, but there no clear cause of that pain because we don't realize it that the depression is causing that pain, that depression is causing these physical problems in our health. इसीलिए तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना कि इस वक्त जो लीडिंग कॉज है डिजीजेस का, वो डिप्रेशन ही है। एंड बाय द 2020, बाय द एंड ऑफ 2030 इट इज़ प्रोडिक्टेड कि सबसे बड़ा जो लीडिंग कॉज है वो डिप्रेशन ही होगा, जो ग्लोबली, वो भी कोई एक कंट्री की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है। दूसरा सोशल विड्रॉवल जो है ना, बहुत ज़्यादा आप नोटिस करेंगे, आइसोलेट करने लग जाएंगे अपने आप को। जो एक्टिविटीज़, जो गैदरिंग्स उनको पहले पसंद होती थी, दे यूज टू अरेंज इट देमसेल्व्स, दे डोंट like to attend it anymore. कहेंगे I'm just tired, I'm just not feeling it today. They'll start avoiding people. In fact, not other people only, they'll start avoiding people at their home, their family. They might just lock themselves in their rooms, dark room में बैठेंगे, and they'll just avoid everyone at any cost. ठीक है। एक जो है ना चीज़ बहुत आती है डिप्रेशन से, ये है कि दे स्टार्ट स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन। वो अपने आप को इतना बिजी रखते हैं, ठीक है, फीलिंग्स को अवॉइड करने के लिए, लेकिन वो ये भी कहेंगे कि अब मैं जो भी करूँ वो परफेक्ट हो। उनको सेटिस्फैक्शन ही नहीं आएगी कभी अपने काम से। दिल फील दैट नथिंग इज एवर गुड इनफ, वट एवर दे डू इज नॉट गुड इनफ, सो दिल स्टार्ट स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन दैट इज unrealistic to reach. This is very important to understand this. In fact, यहाँ पर मुझे याद आया कि a friend of mine once told me that they felt like they were running on empty. उस टाइम, उस वक्त पर तो I did not understand exactly what was going on because I was not aware of from depression. It was not only because I'm talking about back when we were in school. So they said that we are running, it feels like I'm running on empty. सो अब समझ आती है कि इसका मतलब है कि कुछ सब कुछ करते रहना, ठीक है, एवरीथिंग अपेयर्स ओके ऑन द साइड, लेकिन अंदर से ना कंप्लीटली लॉस्ट फील करना। तो ये साइंस को रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इफ़ वी रिकग्नाइज दीज साइंस वी कैन हेल्प देम, and if we recognize these signs in ourselves as well, we can help ourselves, and we can get support. So that's very important for us here. Let's move to the next slide. So I actually did a poll on WhatsApp and Instagram, and everyone said that they're very interested in knowing how to support someone with depression. And you have no idea that warmth that I felt inside my heart. It was beautiful because it felt like, okay, there is still hope out in the world. We are still looking out for each other. So that was beautiful. So now, how we can support someone with depression?
My Instagram handle, yes, it is Hope Soul Mind. I'll share it at the end of the there's it is written at the end of the slide. I'll share that. Okay. So किसी को depression से support करना, I know it's not easy. It can feel challenging, but you have to know that it starts with empathy. You have to be empathetic. अब अगर आप जो हैं, अगर आपसे कोई शेयर कर रहा है अपनी फीलिंग्स और आप बस जल्दी डाल दें या उसको ब्रश ऑफ कर दें, तो ऑब्वियसली that person is not going to share that again with you. They're not going to share their burden with you. They're not going to feel welcomed or heard. So that's very important, to be empathetic, be present. बैठे